Good morning, friends, and welcome back to another episode of Trans India Real People, Real Emotions. दोस्तों, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे कि कैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत ही मुश्किल और बहुत ही स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री है। यंगस्टर्स और औरतें इसमें आना नहीं चाहती हैं, लेकिन एक और सेगमेंट है इस इंडस्ट्री का जहां पर एक बहुत बड़ा शॉर्टेज है। ये शॉर्टेज बढ़ता जा रहा है और आगे चलकर ये ऑपरेशंस को भी हैम्पर कर सकता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों ट्रक ड्राइवर्स की। आप किसी भी हाईवेज पर अगर जाएं, आप देखेंगे कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। दे हैव टू मेक डू विद वॉट एवर ब्रोकन डाउन और शाबी ढाबाज आर अवेलेबल फॉर देम। और यही नहीं, इट इज ऑल्सो सीन हाउ ऑफिशियल्स ट्रीट द ड्राइवर्स बैडली। दे अब्यूज देम, often beat them, and the reason is just to collect a few hundred rupees. दोस्तों, हमें ये एहसास नहीं होता है कि आज हमारे घर पर जो भी चीज़ है या जो भी हम खाना खाते हैं वो एक ट्रक ड्राइवर की बदौलत है। अगर ट्रक ड्राइवर ये सामान आप तक नहीं पहुंचाए तो आपका घर नहीं चल पाएगा। And the same goes for industries. If the truck drivers do not carry raw material to the factories or do not carry the finished goods out of the factories, their production, the industry is meaningless. बहुत कम लोग हैं जो ड्राइवर्स के बारे में सोचते हैं। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही शख्स से जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को तो ट्रांसफॉर्म करना चाहते ही हैं, लेकिन उसकी शुरुआत वो करेंगे ट्रक ड्राइवर्स को ट्रांसफॉर्म करके। ट्रक ड्राइवर्स के शॉर्टेज की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ट्रक ड्राइवर्स हफ्तों तक या महीनों तक घर नहीं जा पाते हैं। ये कंपनी ड्राइवर्स को ऐसी फैसिलिटी दे रही है थ्रू दे अपने घर वापस जा सके। द पेटेंटेड मॉडल ऑफ रिले ट्रकिंग is something that Rivigo is trying to get into India in a big way. Today we will be talking to Deepak Garg, the founder of Rivigo, and we will try to understand and know how Deepak is planning to transform this industry at a time when others are calling Rivigo as competition. So here's our conversation with Deepak coming up after this very short break. Stay tuned and keep watching Trans India Real People, Real Emotions. But first, here are the headlines of the week. Mahindra announces get highest mileage or give truck back guarantee on its entire HCV, ICV and LCV truck range. GST revenue collection at rupees 1.29 lakh crore in December. ACMA puts forward expectations from the Union Budget 2022. Insurers want 15 to 20% hike in third-party motor insurance premiums. 115 auto firms apply for PLI scheme. 269 lives lost in 958 road accidents in 2021 in Nagpur. Pre-owned vehicle market in India likely to reach 8.2 million units by FY26. More from the news segment and the interview with Deepak coming up right after this very short break. Keep watching Trans India, Real People, Real Emotions. याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back, friends, to Trans India. Mahindra's truck and bus division, a part of the Mahindra Group, announced a unique and disruptive customer value proposition, Get More Mileage or Give Truck Back Guarantee, for the entire range of BS6, Blazo X Heavy, Furio Intermediate and light commercial trucks including Furio 7 and Jayo. Speaking on the occasion, Vijay Nakra, Chief Executive Officer, Automotive Sector, Mahindra and Mahindra Limited, said, the Get More Mileage or Give Back Truck Guarantee across the range of trucks is a landmark move for the light, intermediate and heavy commercial vehicle industry. Given the spiraling fuel prices, there wasn't a better time to introduce this customer value proposition. I firmly believe that it will reaffirm our customers' faith in Mahindra's ability to create technologically advanced, class-leading products and set higher standards for the Indian commercial vehicle industry
while reflecting a commitment to the segment. Jalaj Gupta, business head, Commercial Vehicle Business Unit, Mahindra & Mahindra Limited, added, "The mileage guarantee, get more mileage or give the truck back, was first offered on our HCV truck Blazo in 2016 and not a single truck has come back. All new introductions ever since, that is Blazo X, Furio ICV range and Furio 7, have delivered higher fuel efficiency, which is the outcome of Mahindra's superior technological prowess rooted into a deep understanding of the Indian customer. Additionally, Mahindra Truck and Bus is offering service guarantee to ensure higher uptime of our customers through guaranteed speedier turnaround of the truck, be it on the highway or at the dealership workshop. The state-of-the-art IMAX telematics technology is further helping lower the cost of ownership by providing a firm control to the transporter over his trucks, that too remotely. All this and a guaranteed higher mileage would eventually translate into higher prosperity of our customers. Goods and service tax revenue collected in December last year was over Rs 1.29 lakh crore or 13% higher than the same month in 2020, the Finance Ministry said. December is the sixth continuous month where revenue collection from goods sold and services rendered stood at over Rs 1 lakh crore, but the collections were lower than Rs 1.31 lakh crore mopped up in November 2021. The Automotive Component Manufacturers Association, ACMA, the apex body of the Indian component industry, in its recommendations to the government for the forthcoming union budget, has stressed on the need to ensure a uniform GST rate of 18% on all auto components. It has requested for the government to consider upward revision of road depth rates, adopting measures for enhancing investments, including that for R&D. Commenting on ACMA's recommendations for the forthcoming budget, Sanjay Kapoor, President ACMA, said, "The automotive industry is witnessing one of its most challenging yet interesting times ever. Disruptions due to the pandemic, new technologies and regulations are redefining mobility." In this backdrop, the recent policy announcements by the government on PLI scheme for ACC battery, PLI for auto and auto components, and extension of FAME 2 scheme are indeed very timely and will facilitate the Indian automotive sector in becoming integral to global automotive value chains, as also staying relevant. Kapoor emphasized the auto component industry, being an intermediary, has recommended for a uniform GST rate of 18% on all auto components. The industry has significant aftermarket operations that are plagued by grey operations and counterfeits due to high 28% GST rate. A moderate rate of 18% will not only address this challenge but will also enhance the tax base through better compliance. Vehicle owners might have to shell out more for insuring their vehicles. General insurance companies have written to the insurance regulator proposing that the mandatory third-party insurance premiums be hiked by 15 to 20% to help them tide over losses in this segment. If IRDAI accepts the proposal, third-party insurance premium would go up from April 1. While third-party premium rates are revised on an annual basis by IRDAI, these were put on hold in 2020 and then again in 2021 to give relief to policyholders during the pandemic. However, with the rise in the number of third-party claims after the initial drop during COVID, general insurers are finding it hard to keep up. The Ministry of Heavy Industry informed that a total of 115 auto OEM and ancillary companies applied for the government's production-linked incentive scheme for automobile and auto component industry. The scheme was open for receiving application till January 9, the ministry said in a release. According to the ministry, incentives are applicable under the scheme for determining sales of advanced automotive technology products manufactured in India from April 1, 2022 onwards for a period of 5 years. PLI scheme for automotive sector along with PLI scheme for ACC and FAME to enable India to leapfrog to environmentally cleaner, sustainable, advanced and more efficient electric vehicle-based system, it added. The government has approved the PLI scheme for automobile and auto component industry for enhancing India's manufacturing capabilities for advanced automotive products with a budgetary outlay of Rs 25,938 crores. Its objectives include overcoming cost disabilities, creating economies of scale and building a robust supply chain in the area of ATT products. Meanwhile, city roads in Nagpur have witnessed as many as 958 road accidents that claimed 269 lives, including 220 males and 49 females, while injuring 966 people. Compared to 2020, the number of road accidents in Nagpur have witnessed a steep increase when city recorded 773 accidents, killing 213 people and injuring 751 others. While accidents may be rising,
The pre-owned vehicle market in India is expected to reach 8.2 million units by financial year 26 from around 4 million units in the financial year ended March 2021, driven by higher demand from smaller cities coupled with increasingly new vehicle prices and customers changing preferences, the report said on Friday. It also said that the market size is expected to grow to USD 70.8 billion by 2020. It also said that the market size is expected to grow to USD 70.8 billion by 2030 at a compounded annual growth rate of 14.8% between 2021 and 2030. The cost of ownership for a pre-owned or used vehicle is significantly less in comparison to a new one, mainly due to high depreciation, higher taxes, RTO registration fee, and expensive vehicle insurance policies, Grant Thornton Bharat said in its report, noting that with increased new vehicle prices, pre-owned or used vehicles are expected to become a more popular choice among Indian consumers, the report said. The pre-owned vehicle market in India is expected to reach 8.2 million units by financial year 26, a two-fold increase from approximately 4 million units in FY21. Saket Mehra, partner and auto sector leader Grant Thornton Bharat said, the financial year 2021 has witnessed many transitions impacting the financial health of the new vehicle ecosystem in the short term. During the same time, the transition and change in consumer preferences has fast-tracked the pre-owned vehicle market on the path to growth. The buyer is now more open to owning a pre-owned vehicle than ever before, he added. Well friends, that's it from the news segment this week, and coming up after this very short break, our exclusive interview with Deepak Garg, the man who is looking to transform the transport industry and the lives of drivers. Keep watching Trans India, real people, real emotions. याद है कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था, लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है। डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back friends to Trans India. We are in conversation with Deepak Garg, the founder of Rivigo. So Deepak, you come from a purely academic background where you've studied and probably observed this industry very closely. However, you've had no on-ground experience of transportation. So what prompted you, or rather what tempted you to take a dive into this segment where most people are probably trying to get out of it? Yeah, so look, I was in McKinsey for a while, for about 8-9 years before I started this company. When I was leaving McKinsey, I was thinking of a lot of ideas, and one of the things that struck me was that there's so many trucks and logistics is such a large market, and I felt if one could do something here, it could potentially be a big opportunity. When I dug deeper, I realized it's such a large part of the economy, 14% of India's GDP, and if India were to become a large economy, then logistics sector has to be a better, much more better organized sector. That's how my interest started to come about in this space. What was the trigger that said, okay, this is the right time to get in? So trigger was, I would, whatever idea I would work on, I would want to go into a lot of details. So I would do a lot of primary research myself. So when I was thinking about road transportation, I actually did a lot of travel across the country. Met a lot of truckers, transporters, fleet operators, customers, and I realized there's pain everywhere. Right. Everyone is unhappy. And yet you decided to get into a segment that was full of pain. I thought if there is जितना बड़ा पेन है उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा. Right. मतलब मुझे लगा जितनी बड़ी प्रॉब्लम है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, और सब जगह पेन ही पेन है इस सेक्टर में. मतलब ट्रांसपोर्टर दुखी है, फ्लीट ओनर दुखी है, ड्राइवर बहुत दुखी है, कस्टमर बोलता है माल नहीं पहुंचता, ड्राइवर बोलता है बहुत ही
बेकार लाइफ है। फ्लीट ओनर बोलता है ड्राइवर चोरी चकारी करते हैं तो बहुत तंग हूँ मैं, राइट। सो हर जगह पेन ही पेन था। OEMs बोल रहे थे उस समय, OEM एट मैकेंजी आई यूज्ड टू सर्व अ लॉट ऑफ OEMs आल्सो। सो OEMs बोलते हैं सेक्टर में तभी गाड़ियाँ बिकेगी जब ड्राइवर ज़्यादा बनेंगे। ड्राइवर कोई बनना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि ज़िंदगी इतनी ख़राब है। एक ट्रक ड्राइवर महीनों घर से दूर रहता है और उससे उसकी शादी नहीं होती तो सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, वो दारू शराब इन सब चीज़ों में चला जाता है। 40% को HIV है। और अगर ड्राइवर नहीं बनेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी नहीं चलेगी तो इकॉनमी कैसे चलेगी? तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगी। मुझे लगा कि अगर ये प्रॉब्लम को हल किया जाए तो बड़ी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। एंड आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड and wanted to dive deep into this. So Deepak, what exactly were you trying to do, or rather, whose pain were you trying to address at this point of time? And to start off with, was it too much on your plate? No, not too much. I think I figured after meeting all of them and traveling all of them कि एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि एक जो ट्रक ड्राइवर है, मेन तो लॉजिस्टिक्स का चालक वही है। और अनलेस उसकी प्रॉब्लम, अगर उसकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है तो सबकी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो आई जस्ट गॉट टू वेरी सिंपल इंसाइट कि अगर ट्रक ड्राइवर की प्रॉब्लम हल हो जाती है, गाड़ी तो वही चला रहा है, अगर उसकी प्रॉब्लम हल हो जाती है तो ज़्यादा ट्रक ड्राइवर बनने लगेंगे, तो ज़्यादा OEM ठीक होंगे, फ्लीट ओनर खुश हो जाएगा कि अरे ड्राइवर हैं और तमीज़ के हैं, रिस्पेक्ट भी करेगा और वो सब भी होगा, कस्टमर को भी माल सही समय पे पहुंचेगा, रिलायबिलिटी आ जाएगी। तो मैं तो काफ़ी सिंप्लीफाई तरीके से सोच रहा था कि अगर ड्राइवर की प्रॉब्लम को हल किया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ड्राइवर की प्रॉब्लम क्या है वो समझने में आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रैवल्ड, मेट अ लॉट ऑफ देम, स्पेंड टाइम विद देयर फैमिलीज, राइट। और समझ में आएगा डीप रूटेड प्रॉब्लम यही है कि उसकी गांव में इज्जत ही नहीं है। अगर आप ट्रक ड्राइवर बन गए, आप आउटकास्ट हो गए, आपको बोल दिया जाएगा भाई तू तो 37वीं कौम है। तो अगर वो समस्या, उसको सोशल रिस्पेक्ट दिलवा दी जाए किसी तरह, तो जो आज बच्चे हैं वहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर बनना चाहेंगे, या और भी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे वो ट्रक ड्राइवर बनना चाहेंगे। इज्जत की वजह से नहीं बनते, राइट। तो इज़्ज़त कैसे दी जाए? इज़्ज़त के लिए उसको सोसाइटी का पार्ट बनना पड़ेगा, उसकी शादी होनी पड़ेगी। शादी कैसी होगी? जो घर रहेगा ही नहीं तो शादी कैसे होगी? अगर महीनों से घर से दूर रहता है तो शादी कौन करेगा उससे, राइट। और अल्कोहल में रहता है, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के साथ होता है, तो HIV बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, तो कोई शादी नहीं करेगा। तो वो हल कैसे की जाए? अगर उसको घर ले आए किसी तरह से हर दिन, हर दूसरे दिन, तो प्रॉबेबली वो अपने परिवार के साथ जुड़ा रहेगा, उसकी आदतें भी ठीक रहेंगी, घर पे रहेगा तो वो घर का सदस्य बनेगा। घर का सदस्य बनना सोसाइटी का सदस्य बनना होता है। तो बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम होगी कि उसको घर कैसे लेके आए। अगर उसको घर ले आए रोज़ तो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो इट बिकेम टू दैट पॉइंट एंड दैट्स हाउ दिस होल आइडिया ऑफ रिले ट्रकिंग केम इनटू बीइंग कि अगर रिले ड्राइविंग कर दी जाए किसी तरीके से तो काफ़ी प्रॉब्लम एक ही सिंपल तरीके से, एक ही स्ट्रोक ऑफ पेन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम सेक्टर की सॉल्व होती हैं। So Deepak, what was the initial phase of Rivigo and how did you go about things? तो इनिशियल फेज गिरीश यही था कि I was inspired by this idea of relay trucking and I started talking about it with a lot of people in the ecosystem. To my surprise, truck drivers loved the idea. They said, साहब अगर आप ये शुरू करोगे तो मेरा नंबर लिख लो, मुझे ज़रूर इसका हिस्सा बनाना। मैं देश भर में ट्रैवल कर रहा था। OEMs loved it. I spoke to a few customers of logistics. They loved it. सबको कहीं ना कहीं आइडिया भाया उस समय, इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ नया है, पहले हुआ नहीं है, पर इस कुछ तो हल करता है ये प्रॉब्लम, राइट। फ्लीट ओनर्स को अच्छा लगा। हर जगह मैं गया, हर मंडी में, ट्रक मंडी में गया हूँ, हर जगह बात की, सबको ये भाया कहीं ना कहीं आइडिया, राइट। तो मुझे लगा अगर इतने लोग इस आइडिया को सराह रहे हैं एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग व्हाट दिस आइडिया इज़, कुछ तो दम होगा, ट्राई ज़रूर करना चाहिए इसको। तो उसको लेके देन आई क्विट मैकेंजी, आई स्टार्टेड दिस, आई बॉट अ फ्यू ट्रक्स, डिप्लॉयड देम विद गति। 15 ट्रक लेके 2 रूट लेके गति के 2-वे राउट से, तो मैंने वहाँ चलाया। उनको हमने बोला कि आप 60 घंटे में पहुँचाते हो दिल्ली पुणे, हम इसको 30 घंटे के अंदर दिल्ली पुणे पहुँचाएंगे, विल ब्रिंग डाउन द टर्न अराउंड टाइम बाय हाफ। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा रिले ट्रकिंग करेंगे तो गाड़ी कभी रुकेगी नहीं
और ड्राइवर भी घर आएगा तो ड्राइवर खुश रहेगा, गाड़ी भी ज़्यादा चलेगी, आपको कॉस्ट भी ठीक पड़ेगी और टैट हाफ हो जाएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उनको आइडिया, एंड दे टुक अ बेट ऑन समवन वाज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री कि आप करके देखिए कैसे, एंड इट वर्कड रियली वेल, इट वर्क ब्यूटीफुली। और उसके बाद हमने मुझे ध्यान है उस समय जब भी हमने शुरू किया था, एट दैट पॉइंट इन टाइम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे वगैरह था, तो माल बहुत सारा एयर से ज़्यादा था उस समय इन सब का, तो बहुत चोक हो गया क्योंकि इतना बड़ा सीज़न था, वो पहला बड़ा सीज़न था अक्टूबर 2014 का, दिवाली का, तो चोक हो गया, मतलब दिनों दिन माल ही नहीं पहुंच रहा था। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम इतना अच्छा था, हमें लगा ये तो हम एयर शिपमेंट ऑन रोड कर सकते हैं, हवाई जहाज़ का माल रोड्स के ज़रिए से करते हैं। तो हमने एक स्लोगन यूज़ किया, एयर शिपमेंट ऑन रोड। ये लोगों के साथ हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी और कंपनियों के पास गए और हमने लोड, टू बी ऑनेस्ट वी वर द फर्स्ट कंपनी, हम पहली कंपनी थे जो रोड ट्रांसपोर्ट में आवर्स में टैट बात करने लगे। नो वन वॉज टॉकिंग इन आवर्स बिफोर दैट, राइट, पीपल वर टॉकिंग इन डेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने घंटों में टैट बात करने, हमने मिनटों में टैट बात करने की बात की। तो हमने पूरा रोड को असेंबली लाइन की तरह ट्रीट किया, जो भी बॉटलनेक्स थे रोड में सारे हमने कुछ इनोवेटिव तरीक़ों से हल करने की कोशिश की। और उस समय तो बॉर्डर्स और ये सब बहुत चक्कर होते थे और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको हल करी और अच्छा हमें उस समय ग्रोथ मिली। Deepak, what were the initial challenges that you faced while setting up this relatively untried system, and how did you get the message across to drivers, making them understand the relay model and telling them the importance of adhering to delivery schedules? So देखिए कोई भी आप नया कॉन्सेप्ट लेके आते हो तो चैलेंजेस तो बहुत होते हैं, मतलब राइट, जितने बिलीवर्स होते हैं उससे 100 गुना नेसेयर्स होते हैं, राइट। तो मुझे याद है कि जब हमने शुरू किया कॉन्सेप्ट, शुरू करने की बात की, तो कस्टमर को कन्विंस करना कि ये चलेगा बहुत बड़ा बैटल था कि अरे नया है, मेरा माल नहीं पहुंचा। तो क्योंकि मैं एक सर्टन बैकग्राउंड से आ रहा था, बहुत पैशन के साथ आ रहा था, लोग ने चलो बेट लिया, चलो ठीक है ये लड़का कुछ कह रहा है, नई बात कह रहा है, बहुत पैशन दिखा रहा है, तो चलो कुछ ऑर्डर दे के देखते हैं, राइट। हर गांव गए ड्राइवर को हायर करने, तो बहुत सारे ढाबों में जाके ड्राइवर इकट्ठा करके बात करता था, उनको समझाते थे, तो मैंने देखा उनमें एक उत्साह बना। Was it an easy task getting drivers on board for the system? No, so it was not that hard. Okay. It wasn't that hard to be honest, right? क्योंकि ट्रैवल बहुत कर रहे थे तो समझ तो रहे थे क्या वर्क कर रहा है उनके लिए क्या नहीं, एंड इतना हार्ड नहीं था। हार्ड तो ज़रूर था, लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, नया कॉन्सेप्ट, किसी को भी बेचना हार्ड होता है, किसी को भी चलाना हार्ड होता है, बट या आई थिंक इट स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस। फिर हमारा प्लान था कि एसेट लाइट से ही करेंगे, कि ट्रक थोड़ी ख़रीद सकते हैं, ट्रक कैसे चलेगा हमसे, राइट। लेकिन जब मैंने बात करनी शुरू करी बहुत सारे फ्लीट ओनर से कि आप हमें लीज़ कर दो, एसेट जो भी है, वो बात बनी नहीं। फिर मुझे लगने लगा कि एक बार एक्चुअली प्रूव करने के लिए एसेट खरीदना ही पड़ेगा, ट्रक खरीद के ट्रकर ही बनना पड़ेगा अगर इसको प्रूव करना है आइडिया को, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू प्रूव इट, बिल्ड एनीथिंग, राइट। तभी कस्टमर भी ट्रस्ट करेगा, तभी ड्राइवर भी ट्रस्ट करेगा, यू नो, इकोसिस्टम ट्रस्ट करने लगेगा। तो हमने 15 गाड़ियाँ खरीदी, तो बैंक ने बोला कि आप तो फर्स्ट टाइम यूज़र हो, आपको मिल ही नहीं सकता गाड़ी। मैंने कहा ये क्या मतलब है, फर्स्ट टाइम यूज़र को मिलेगा नहीं तो कोई नया एंटरप्रेन्योर, तो हर कोई ऐसा मतलब है कि आप पुराने लोग ही काम करेंगे इसमें। तो बैंक को कन्विंस करना बहुत टफ था, इनफैक्ट टफेस्ट वाज टू कन्विंस अ बैंक टू फंड कि यू नो ये आइडिया चलेगा और फर्स्ट टाइम यूज़र है तो क्या हो गया, मतलब बोलेंगे कि या तो हम फर्स्ट टाइम यूज़र में सिर्फ ड्राइवर लाइसेंस जिसके पास होता है उसको देते हैं, FTU को हम नहीं देते गाड़ी। बट सी वही होता है कि थोड़ी सी अच्छा काम जब करते हो तो मुझे लगता है यूनिवर्स भी साथ देता है, बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया, हेल्प करने आए, कुछ प्रॉब्लम आती थी तो हल भी हो जाती थी और एक एक करके हल होती रही। ऑब्स्टिकल्स तो बहुत आए बट रास्ता मिलता गया, और इसलिए पहले हम ट्रक्स फर्स्ट बोलते थे कंपनी को, उसका नाम हमने रिविगो रख दिया। और इससे भी इसी से लिंक्ड है वो, क्योंकि इतनी ऑब्स्टिकल्स और इतनी चैलेंजेस थी काम करने में, हमें लगा कि ये हम टीम रूम में हमेशा बात करते थे, नहीं चैलेंजेस को ओवरकम करना है, जैसे नदी ओवरकम करती है ना पत्थर को और अपने रास्ते पे चलती रहती है, तो ये नदी का उदाहरण बहुत होने लग गया था टीम में, नदी की तरह है यार, हमें बहते रहना है।
हमें तो पत्थर तोड़ के बहते रहना है, ऐसे बात बहुत होने लगी टीम रूम में। तो करते करते जब किसी ने रिविगो नाम सजेस्ट किया, रिवर ऑन द गो, तो बड़ा नेचुरल लगा, मुझे लग रहा है ये तो हमारा नाम ही है, हम तो यही करते हैं कि हम तो पत्थर तोड़ते तोड़ते ही आगे बढ़ रहे हैं। और ऑब्स्टिकल्स तो इस सेक्टर आपने 58 ईयर से देखा है इस सेक्टर को, ये सेक्टर तो मुश्किलों से भरा ही हुआ है। जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इस सेक्टर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है इसको काम करने में, इसमें काम करने में। Deepak started with just 15 trucks and suddenly there was a huge buzz in the industry that Deepak is buying thousands of trucks. We'll know about this decision and what was Deepak thinking while buying thousands of trucks. Coming up right after this very short break. Stay tuned and keep watching Trans India. याद है, कुछ इसी तरह का स्टंट मैंने आज से करीब 30 साल पहले भी किया था। लेकिन आज इस डबल ट्रक्स के स्टंट की वजह कुछ और है, डबल गारंटी। पेश है नया महिंद्रा फ्यूरियो 7, जो आता है डबल गारंटी के साथ। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनके नए महिंद्रा फ्यूरियो 7 का माइलेज आपके मौजूदा ट्रक से ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कर दीजिए ट्रक वापस। नया महिंद्रा फ्यूरियो 7 आपको देता है गारंटीड रीसेल वैल्यू 5 साल के बाद। खरीदते समय माइलेज की गारंटी और बेचते समय रीसेल वैल्यू की गारंटी, तो हुई ना डबल गारंटी। Welcome back friends to Trans India. We are in conversation with the founder of Rivigo, Deepak Garg. Well Deepak, you started off with just 15 trucks and suddenly you rattled the entire industry by buying thousands of trucks in one go. What was the thought process behind this? So basically, look, when we deployed 15 trucks, it worked beautifully. We got order for the next 10, then next 50. Then when we went into Amazon and Flipkart, we basically got massive orders. Not just from Amazon, Flipkart, anyone who was running the network, right? तो हमारे पास ऑर्डर इतनी ज़्यादा थे और हम गाड़ियाँ 25 से 30 हज़ार किलोमीटर मंथली की रनिंग पे हम चला पा रहे थे, राइट? विच इज़ अनहर्ड ऑफ। गाड़ियाँ 6-8 हज़ार चलती थी, हम 4 से 5 गुना गाड़ियों की यूटिल चला पा रहे थे। और जो हमारे प्राइजेस कमर्शियल जो भी मिल रहे थे, हम गाड़ी का पे बैक 1-2-3 महीने में कर पा रहे थे। ऐसा भी हमने समय देखा है, राइट? बिकॉज हम ही थे अकेले जो उस समय एयर कार्गो को रोड पे कर रहे थे, तो वी आर गेटिंग अ गुड प्राइस ऑल्सो एंड इट हेल्प्ड अस ग्रो। और हमें पे बैक पीरियड अच्छा था, इट बिकेम अ वेरी स्केलेबल ग्रोथ मॉडल। और दूसरी बात ये हमें लगी कि एक स्केल के साथ ही सारी चैलेंजेस समझ में आएंगे, हर रूट के चैलेंज समझ में आएंगे। तो हम नेटवर्क बिठाते चले गए, पैन इंडिया नेटवर्क हमने खोला। और मेरा मोटा एस्टिमेट है कि 30-40 मेजर ट्रेड रूट्स हैं इंडिया में, और एक ट्रेड रूट को अच्छे से समझने में उस पर 100 गाड़ी खुद की चला के समझ में आने लग जाता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी हल हो जाती हैं और डेटा भी बहुत आता है, उसकी आप डिमांड भी समझ जाते हो, सप्लाई भी समझ जाते हो, ऑब्स्टिकल भी समझ जाते हो, टेक भी अच्छी बनती है, आपको कहाँ पिट स्टॉप लगाने हैं, क्या डेटा है, क्या गांव है, कहाँ से पायलट हायर करने हैं। तो मेरे दिमाग में समहाउ ये मैथ थी, हमने जब मैथमेटिक्स करी कि यार कि 2,500-4 हज़ार गाड़ियाँ चला के हम इसको पूरा ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसीलिए हमने 3,000 गाड़ी खुद से बनाई और खुद से चलाई। वी वेरी फास्ट बिकेम द लार्जेस्ट फ्लीट ऑपरेटर इन इंडिया। मतलब एट वन पॉइंट इन टाइम हमने शायद कंसिस्टेंटली एवरीवेयर वी आर ऑर्डरिंग some 1,000 odd trucks, right, which was the largest order at that point in time, right? 1,000 ट्रक का, शायद अभी भी किसी ने 1,000 ट्रक एक साथ नहीं ऑर्डर किए हैं। तो थोड़ा बोल्ड तो थी, और बोल्ड इस सेक्टर में रहते हो तो बोल्ड तो होना पड़ता है। यू हैव टू बी बोल्ड एंड करेजियस एंड फियरलेस, राइट? सो we were young, bold, fearless, courageous. And did you manage to get drivers for all these trucks? Yeah, drivers is very easy, very easy. In our model, it's very easy. Deepak, how did you get the relay model into place and what was the science behind all this? पूरा साइंस का ही मॉडल है, एल्गोरिथम्स का ही मॉडल है, टेक्नोलॉजी का ही मॉडल है, राइट? कि ड्राइवर्स को कैसे प्लेस करना है, कितने ड्राइवर्स कहाँ होने चाहिए, कैसे रोस्टर करना है उनको, किसको ड्यूटी कब देनी है, राइट? पूरा एल्गोरिथम का ही प्ले है। उसकी एप्लीकेशन पे ड्यूटी आती है, वहीं से वो वापस आता है, राइट? इट्स अ प्योरली एल्गोरिथमिक प्ले, रीजनेबली कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स, राइट? तो पूरा वो हमने उसको ऑटोमेट किया है और नाउ इट्स वर्किंग एट अ वेरी लार्ज स्केल एंड
and we hope to take it to a very, very large scale, and we believe that every pilot should come back home. That's our life mission, कि हर पायलट अपने घर आए, उससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती. And actually drivers would be loving the systematic way of working and getting back home each day? Yeah. They love Rivigo, they are devoted to Rivigo. मतलब आप किसी Rivigo पायलट से कभी भी बात करोगे तो वो कभी छोड़ता नहीं है और Rivigo के साथ ही रहता है. Deepak, what are the distinctive advantages of being a tech-driven company? We all know that family-managed transport businesses do not have the resources or maybe access to the kind of technology that you have. What is the advantage that drives you forward? So, मेरा एक फंडामेंटल फिलॉसफी है कि जितनी ट्रांजैक्शन या ड्रजरी होगी उतना ग्रोथ को लिमिट करेगी और स्केल को लिमिट करेगी और परेशानी रहेगी, राइट. तो जितना हम टेक्नोलॉजी से ऑटोमेट करते रहेंगे चीज़ों को उतना चीज़ें सरल होती जाएंगी, राइट. सो टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू एलिमिनेट ड्रजरी, राइट. दैट्स व्हाट यू बिलीव. सो और लॉजिस्टिक्स में, रोड ट्रांसपोर्ट में खासकर बहुत ज़्यादा ड्रजरी है. चाहे वो चेज़ करते रहते हैं शिपमेंट को, चाहे पता नहीं है फ़ोन पे लगे रहते हैं. आप देखोगे ना, आप तो 58 ईयर से देख रहे हो, राइट. हर कोई फ़ोन पे रहता है, हर कोई सेक्टर में फ़ोन पे रहता है. अगर आप फ़ोन पे रहोगे तो आपकी लाइफ तो पीसफुल नहीं हो सकती, राइट. तो बहुत ज़्यादा ड्रजरी है इस सेक्टर में, बहुत ज़्यादा पेन है. तो मुझे लगता है वो टेक्नोलॉजी से वो पेन दूर हो सकता है, वो रियल जॉय बन सकता है इस काम में. क्योंकि और पेन क्यों है या ड्रजरी क्यों है? क्योंकि लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते. मालक ड्राइवर को ट्रस्ट नहीं करता, ड्राइवर मालक को ट्रस्ट नहीं करता, ट्रांसपोर्टर ब्रोकर को ट्रस्ट नहीं करता, कस्टमर ट्रांसपोर्टर को ट्रस्ट नहीं करता, ट्रांसपोर्टर कस्टमर को ट्रस्ट नहीं करता, ये डैमेज ज़्यादा लगा देगा, जो भी है पैसे नहीं देगा, राइट. पूरा सेक्टर डिस्ट्रस्ट से भरा हुआ है. मेजर ट्रस्ट इशू है इस सेक्टर में. इतना अगर डिस्ट्रस्ट होगा तो पेन तो होने वाला है, राइट. तो आप बस फ़ोन पे मॉनिटरिंग, कहाँ पहुँचा, राइट. और सब बड़ी समस्या है, राइट. सो आई थिंक दैट्स व्हाई बिग बिलीवर कि टेक्नोलॉजी से ये सब ट्रस्ट आ सकता है, ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, ऑटोमेट हो सकता है. आपको मैनुअली नहीं चीज़ें, अब जब भी आप मैनुअली करोगे चीज़ें, कुछ भी काम कोई भी करोगे, वो फेल होगा ही स्केल पे. लेट्स से सपोज करो हम पायलट एलोकेशन जो है रिले की मैनुअली छोड़ दें करने के लिए, कि हमारे लोग बताने लगे, तो वो स्केल नहीं कर सकता. वो 1000 पायलट पे, 2000 पायलट पे फेल करेगा. वो 1 लाख पायलट, 2 लाख पायलट, 1 करोड़ पायलट पे जा ही नहीं सकता है. Deepak, of late there have been many government policies that actually support the logistics segment, which we have not seen before. And at the same time, infrastructure is also getting better. How do you see all this impacting the business of Rivigo? See, I think I have said this before. 2014 में जब हमने एंटर किया इस सेक्टर में, आई एंटर्ड द सेक्टर इन अ होप. मेरी शुरू की डॉक्यूमेंट भी बोलती हैं कि देखिए GST आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी और इस सेक्टर को बहुत हेल्प मिलेगी, राइट. एंड व्हाट आई हैव सीन लास्ट 7 years कि जो हमने सोचा था सब होने लगा. GST आ गया, बॉर्डर बंद हो गए, RTOs ना के बराबर हो गए, रोड पे ना के बराबर हो गए, राइट. हमने कभी सोचा नहीं था ये फास्टैग से ऑटोमेशन हो जाएगा, वो हो गया. इतना बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ट्रैक्टर ट्रेलर की डीकपलिंग की रेगुलेशन आ गई, ई-वे बिल से कितनी सुविधा आ गई, राइट. डिजिटल इंडिया पूरा उससे ये हो गया, स्मार्टफोन सबके पास हो गया. ट्रक पायलट हमने कभी सोचा नहीं था स्मार्टफोन पे उसको हम ड्यूटी दे पाएंगे और वो उस पर करेगा. आज के दिन में ज़्यादा बेटर चलाता होगा किसी और से स्मार्टफोन और एप्लीकेशंस और वो सब, राइट. तो इंडिया हैज़ गॉन थ्रू लास्ट 7 years ऑफ मैसिव चेंज. शायद मतलब इतना ज़्यादा चेंज, और मैंने तो अपनी आंखों के सामने देखा है. मैंने 2014 भी देखा है जब कुछ नहीं था चेंज. मैंने आज भी देखा है जब सब कुछ बदल गया है. और मैं तो इतना जल्दी बदलाव हो रहा है कि हमारी जैसी जो यूथफुल स्टार्टअप्स हैं उनको भी उस चेंज के साथ रहने में कंटिन्यूस ऑन टोज रहना पड़ता है, और अच्छे तरीके से. और ये अच्छा है. और आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि और मतलब जैसे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है अभी, आगे आने वाले समय में मुझे लगता है और ज़्यादा चेंजेस आएंगे रेगुलेशन में, पॉलिसी में, और सिंप्लीफिकेशन होगी. क्योंकि ये तो
तय है कि आगे के 50 साल इंडिया के हैं ग्लोबल एरेना में। अगर ये है तो इंडिया विल बी अ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट नेशन। हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से ही आगे बढ़ेंगे। वो होना है तो एक्सपोर्ट्स होना है तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम होना ही पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने के लिए प्रोसेस का सिंप्लीफिकेशन और सब कुछ ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना लाजमी है। आज हमारी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स 14% है, वो 7-8% होनी चाहिए और मुझे लगता है रिले मॉडल से 7-8% पॉसिबल है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट that Rivigo can enable this 14% to come down to 7-8% if relay model is adopted at scale. Well friends, we are talking to the founder of Rivigo, Deepak Garg. We shall be continuing our interaction with Deepak next week and knowing more about the relay model and what benefits it brings to the organization and how it is going to transform the road transport industry. Stay tuned and keep watching Trans India. Until next week, stay safe and don't forget to subscribe to our channel. Jai Hind.